ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1, Questions by the Sages, Text 21. Kalimagatamaghyaya Kshetresmin Vaishnave Vayam Asina dirghasatreena Kathayam sakshana harehe. Translation and purport by Srila Prabhupada. Knowing well that the age of Kali has already begun, we are assembled here in this holy place to hear at great length the transcendental message of Godhead and in this way perform sacrifice. Purport. This age of Kali is not at all suitable for self-realization, as was Satya Yuga, the golden age, or Treta or Dwapar Yugas, the silver and the copper ages. For self-realization, the people in Satyuga, living a lifetime of 100,000 years, were able to perform prolonged meditation. And in Treta Yuga, when the duration of life was 10,000 years, self-realization was attained by performance of great sacrifice. And in the Dwapar Yuga, when the duration of life was 1,000 years, self-realization was attained by worship of the Lord. But in Kali Yuga, the maximum duration of life being 100 years only, and that combined with various difficulties, the recommended process of self-realization is that of hearing and chanting of the holy name, fame and pastimes of the Lord. The sages of Naimisharanya began this process in a place meant specifically for the devotees of the Lord. They prepared themselves to hear the pastimes of the Lord over a period of 1,000 years. By the example of these sages, one should learn that regular hearing and recitation of the Bhagavatam is the only way for self-realization. Other attempts are simply a waste of time, for they do not give any tangible results. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu preached this system of Bhagavad Dharma, and he recommended that all those who were born in India should take the responsibility of broadcasting the message of Lord Shri Krishna, primarily the message of Bhagavad Gita. And when one is well established in the teachings of Bhagavad Gita, he can take up the study of Srimad Bhagavatam for further enlightenment in self-realization. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhaktabinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. आपने श्रीमद् भागवतम का नाम सुना है? तो श्रीमद् भागवतम ये जो 12 स्कंद में है, ये संवाद है नैमिषारण्य में एकत्रित मुनियों के बीच में और शौनक ऋषि के बीच में। नैमिषारण्य कहाँ पर है? नैमिषारण्य तीर्थ। यस, कहाँ पर है? लखनऊ के पास ये स्थान है, अभी भी है, नैमिषारण्य, जहाँ पर ये भागवतम संवाद जिस रूप में यहाँ हम पढ़ रहे हैं उस रूप में हुआ। तो कलयुग जब आरंभ होने को था, जब आरंभ हो चुका था, स्टार्टिंग फेज, तब ये सभी ऋषिगण एकत्र हुए
कलिम आगत्यम अज्ञाय, जानते हुए कि कली प्रारंभ हो चुका है, वो लोग सब एकत्र हुए। किस लिए? कि हम सभी कलयुग के जो ये दुर्गुण हैं उसको हटाने के लिए, समाज के अंदर कलयुग के लक्षणों को हटाने के लिए, दुर्गुण को हटाने के लिए क्या उपाय है, ये जानने के लिए वो सब एकत्र हुए। तो जो संत लोग होते हैं, संत मतलब जिनकी भी चेतना संत जैसी है, संत जरूरी नहीं है कि वो भगवा पहने हों, लेकिन मुख्य बात है कि उनके विचार, उनकी चेतना वो भगवान को समर्पित हो, समर्पण की भावना हो। तो ऐसे संत लोग हमेशा से विचार करते हैं कि सभी लोगों का कल्याण कैसे होगा, ये उनका एक मुख्य लक्षण है संत होने का। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, सभी के वो मित्र होते हैं, स्वार्थी नहीं होते हैं। सामान्य लोग, सब लोग स्वार्थी होते हैं, सबको अपना अपना ही देखना होता है, बस मेरा इंद्रिय भोग, और वो वास्तव में अपना हित सोचते हैं, लेकिन वो उनका हित तो होता ही नहीं है। न ते विदुर स्वार्थ गतिम ही विष्णु, वो नहीं जानते हैं कि वास्तविक उनका स्वार्थ अर्थात वास्तविक उनका हित तो भगवान की सेवा में है, वो ये भी नहीं जानते हैं। वो केवल सोचते हैं इंद्रिय भोग उनका हित है, और इस प्रकार से स्वार्थी बन जाते हैं। लेकिन जानता है कि उसका वास्तविक हित भगवान की सेवा है, वो कभी स्वार्थी नहीं बनता उस सेंस में, गलत सेंस में। हम सबको स्वार्थ अर्थात हम सबको अपना सोचना है, लेकिन हमारा सही सोचना किस में है? भगवान की सेवा में, और भगवान की सेवा के अंतर्गत सबका हित करने में, क्योंकि सबका हित में भगवान संतुष्ट होते हैं, इसलिए उससे फिर हम संतुष्ट होते हैं। तो इस तरह से स्वाभाविक रूप से जो भगवान के भक्त हैं वो सबके लिए सोचते हैं, सबके हित के लिए सोचते हैं, ये लक्षण है। तो इसी हेतु से वो सभी ऋषिगण एकत्र थे कि जनहित कैसे होगा, और विशेष रूप से कलयुग सभी को ग्रस्त किए जा रहा है, सभी को कलयुग का दुष्प्रभाव प्रभावित कर रहा है, सभी लोग परेशान हैं। भले ही आजकल लोग ऐसा दिखता हो कि बड़े सुखी हैं बाहर से, लेकिन दुखी हैं। और अगर एक्सपीरियंस नहीं भी कर रहे हो कुछ समय कि हम दुखी हैं, रियली सोच रहे हो कि हम सुखी हैं, तो भी भक्तगण जानते हैं कि वो दुखी हैं, क्योंकि ये जो सुख है वो क्षणिक है, जो वो लोग इस समय अनुभव कर रहे हैं। आज है, कल नहीं होगा। जैसे किसी आदमी को आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में एक्सीडेंट होने से 1 मिनट पहले तक भी उसको नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। ही वॉज थिंकिंग आई एम वेरी हैप्पी, बट नाउ इज़ वेरी अनहैप्पी। तो इसलिए भक्तगण जानते हैं कि जो भी आज अगर सुखी हैं भी, तो भी टुमारो दे विल बी अनहैप्पी। आपकी पोस्टिंग लगेगी ट्रॉमा वार्ड में, यू विल सी। हम लोग बहुत कम कभी कभी देखते हैं ना एक्सीडेंट्स, ट्रॉमा, बट ट्रॉमा वार्ड में सारे जगत का ट्रॉमा वहीं आ जाता है, कंसंट्रेटेड ट्रॉमा। सो देयर यू कैन एक्सपीरियंस, किसी का हाथ कटा है, किसी का जस्ट ब्लड एवरीवेयर, एंड इज जस्ट वेरी नाइस सीन फॉर रियलाइजेशन, फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। बहुत अच्छी जगह है हॉस्पिटल सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, अगर साथ साथ भागवत श्रवण हो रहा है तो। नहीं तो ऐसे ट्रॉमा वार्ड में भी देयर आर डॉक्टर्स एंड नर्सेज हु आर ट्राइंग टू मेक लव, ट्राइंग टू एंजॉय इन दैट हॉरिबल सिचुएशन। लेकिन जो लोग भागवतम साथ साथ सुनते हैं, तो उनको जब देखते हैं तो उनको रियलाइजेशन होता है, यस दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। अन्यथा ये सब देख करके भी नहीं देखते हैं। पश्यन अपि न पश्यति, दे सी एंड दे डोंट सी, बिकॉज वी डोंट सी जस्ट बाय आइज, वी सी बाय कॉन्शियसनेस, करेक्ट। तो ये लोग वहाँ पर सभी एकत्रित थे, और ये कलयुग को कैसे हटाया जाएगा इसके लिए विचार कर रहे थे। तो हर एक युग के अंदर प्रोसेस है आत्म साक्षात्कार करने का। आत्म साक्षात्कार मतलब स्वयं को पहचानना और स्वयं की वास्तविकता को जानना। क्यों हम ये दुख
के संसार में गिर गए हैं, इससे कैसे हम निकलेंगे, ये सब चीज़ों को जानना, इसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो ये आत्म साक्षात्कार ही जीवन का लक्ष्य है। और ये आत्म साक्षात्कार की अलग अलग युग में अलग अलग विधि हैं। जैसे जैसे कलयुग की तरफ हम बढ़ते हैं, कलयुग वर्तमान समय में है, तो ऐसी विधि चाहिए, ऐसी विधि ही केवल कारगर है जो बाकी युगों में कारगर नहीं थी। मतलब जो विधि बाकी युगों में कारगर थी वो अभी इस युग में कारगर नहीं होगी। इस युग में जो कारगर है वो तो हमेशा से कारगर रहेगी, है ना। जैसे पासिंग मार्क्स 50 हैं, तो अभी अब लोग देखते आ रहे हैं ये तो सब स्टूडेंट्स इस बार तो कोई पास ही नहीं होगा, तो क्या करते हैं, ग्रेस मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनको पास कर देते हैं। तो लाइक दैट कलयुग के अंदर सब इतने ज़्यादा पतित हैं कि उनको ऊपर भगवान ऐसा मार्ग ही केवल काम करेगा जो सबसे निम्न स्तर पे भी काम करता है, यानी सबसे पोटेंट तरीका, सबसे पोटेंट, दैट इज दिस चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण मंत्र। बाकी युगों में तपस्या भी काम करती थी, ध्यान भी काम करता था, लेकिन वर्तमान समय में वो ध्यान और काम करता है, मतलब हम उसके योग्य नहीं हैं, हम कर नहीं पाते हैं उस विधि को, क्योंकि हम बहुत पतित हैं। इसलिए वर्तमान समय में एक ही विधि है जो हमें वर्तमान कलयुग के कलमश से हटा सकती है और हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। वो है हियरिंग एंड चैंटिंग, श्रवणम कीर्तनम से प्रारंभ होने वाली नवविधा भक्ति। तो इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम उन्होंने रचा, ये कथा हुई, और ये कथा जो हुई, ये श्रवण कीर्तन जो हुआ, तो जो सूत गोस्वामी थे जिन्होंने सुनाया, उन्होंने ये सुना था इससे पहले, कब, कहाँ, ये जो संवाद सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि के बीच में हुआ, तो उसमें सूत गोस्वामी ने उनको सुनाया, शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किए, तो उससे ये संवाद बना। तो सूत गोस्वामी ने अपने मन से नहीं सुनाया, वो तो तरीका ही नहीं है, तो उन्होंने सुना था, किनसे सुना था, राजा परीक्षित से। नो, राजा, हाँ, सॉरी, नो। तो ये सूत गोस्वामी ने सुना शुक्रताल में शुकदेव गोस्वामी के मुख से। जब परीक्षित महाराज को भविष्यवाणी हुई थी कि वो तक्षक के डसे जाने से 7 दिन के अंदर मारे जाएंगे, तो तब उन्होंने, वो सम्राट थे, परीक्षित महाराज तक सम्राट थे, उसके बाद में फिर धीरे धीरे विघटन हो गया, तो उन्होंने अपना सब राज्यपाट छोड़ करके, अपने पुत्रों को छोड़कर दे करके वो बैठ गए शुक्रताल। ये कहाँ पर है, नो, शुक्रताल भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, नियर मेरठ, मुजफ्फरनगर के पास शुक्रताल, सहारनपुर के पास शुक्रताल। तो ये स्थान पर ये संवाद हुआ शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित। वहाँ पर सुनने वाले कौन थे, शुकदेव गोस्वामी, और सुनाने वाले कौन थे, सुनने वाले कौन थे, परीक्षित महाराज, और सुनाने वाले कौन थे, शुकदेव गोस्वामी। और ये संवाद जब हो रहा था तो बहुत सब ऋषिगण वहाँ आ गए, और उसमें से सूत गोस्वामी भी एक थे जो सुन रहे थे। और फिर 2000 साल बाद सूत गोस्वामी ने यही संवाद शौनक आदि ऋषियों को सुनाया, जो हम शेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किए थे, वो यही प्रश्न थे कि परम धर्म क्या है सभी लोगों का, और विशेष रूप से जो मरणासन है उसके लिए धर्म क्या है, उसे क्या करना चाहिए। और इस प्रकार से संवाद प्रारंभ हुआ।
तो अभी सूत गोस्वामी जब प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो हाँ, जो मैंने सुना था यही प्रश्न वहाँ हुआ था, इस प्रकार का प्रश्न, और ये उनका उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने सुना था, ऐसा बता रहे हैं। और फिर सुखदेव गोस्वामी जब प्रश्न का उत्तर देंगे तो वो भी हाँ, ये प्रश्न मैत्रेय मुनि ने विदुर ने किया था मैत्रेय से, उसमें मैत्रेय मुनि ने बताया। फिर मैत्रेय मुनि बीच में बताएंगे यस, ये प्रश्न 4 कुमारों ने ब्रह्मा से किया था और ब्रह्मा ने इस प्रकार से उत्तर दिए थे। ऐसे जगह जगह आएगा। ब्रह्मा भी हाँ, ये मैंने भगवान से सुना है, इस प्रकार से मैंने भगवान से प्रश्न किया था। सो यू सी हाउ इट इज गुरु शिष्य परंपरा, नॉट लाइक प्रश्न किया, या ओके लेट मी थिंक, या आई थिंक इट्स लाइक दैट, इन माई ओपिनियन इट इज लाइक दिस, इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये है परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर, क्योंकि ये प्रश्न भी नित्य प्रश्न है। ये प्रश्न नहीं है कि सोनी का नया मॉडल आया है उसका कॉस्ट क्या है, वो प्रश्न तो टेम्परेरी है और उसके उत्तर भी टेम्परेरी है। लेकिन ये प्रश्न कि जीव का परम धर्म क्या है, जीव का परम हित किस में है, वो नित्य प्रश्न है और वो उसका उत्तर भी नित्य है, इट विल नॉट चेंज। और ये वास्तविक ज्ञान तो भगवान से ही प्रारंभ होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कैसे ये सारा ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है। और हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषा में इसको पहली बार दिया, उससे पहले तक संस्कृत भाषा में और बंगाली में था, लेकिन अंग्रेजी भाषा में, और न केवल भाषांतरण किया बल्कि इसके ऊपर पर्पट्स दिए, कमेंट्री लिखी, जो विशेष रूप से आजकल का जो आधुनिक भ्रमित मानव है, मनुष्य है, हाँ, वो कैसे इस दिव्य ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी लाइफ में। आजकल जो हो रहा है उसको भागवत के परिप्रेक्ष्य में समझा करके उन्होंने हम सबके लिए इस मैसेज को दिया, जिससे हम इसको वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट और उसको फिर अपने जीवन में उसको उतार सकें। तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे भगवद गीता भी अध्ययन करेंगे और भागवतम भी अध्ययन करेंगे। भगवद गीता और भागवतम दोनों ही पराविद्या हैं, दोनों ही परम ज्ञान है। भगवद गीता आरंभिक ज्ञान है और भगवद गीता उसके आगे का ज्ञान। भगवद गीता आरंभ होती है अर्जुन के प्रश्न से कि कार्पण्य दोष अप्रत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कि भगवान मैं धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे क्या करना है, मैं पूरी तरह से धर्म में मूढ़ हो गया हूँ। तो वहाँ से भगवान प्रारंभ करते हैं ABCD से, यू आर नॉट दिस बॉडी यू आर सोल, यहाँ से शुरू करते हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। अलग अलग योग बताते हैं, कर्म योग है, ज्ञान योग है, और अंत में भगवद गीता को कंक्लूड करते हैं कि सभी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। दिस इज द एसेंस टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। श्रीमद् भागवतम वहाँ से प्रारंभ होती है। हाउ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्ण, हाउ टू एग्जीक्यूट भक्ति, एंड और साथ साथ सभी विषय आते हैं और संबंध ज्ञान के। तो इसीलिए भागवतम जो है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि भगवद गीता इज द प्राइमरी स्टडी, और उसका और फर्दर डिटेल, भगवद गीता का और फर्दर इलेबोरेशन जो है वो है श्रीमद् भागवतम। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा एक सप्ताह में 1 या 2 दिन भागवतम पढ़ेंगे। इसमें भगवान और भगवान के भक्तों की कथाओं के माध्यम से भगवत तत्व विज्ञान हम लोग सीखेंगे। भगवान की उसमें लीलाएं हैं और लीलाओं के माध्यम से ये सब विषय हैं। सो आप लोग थोड़ा थोड़ा समय भगवद गीता पढ़ने के लिए, पहले प्राइमरी भगवद गीता पढ़िए, और जो जो हम पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो पहले भगवद गीता ज़्यादा पढ़िए। तो आप में से आप सब लोग कुछ कुछ समय निकाल पा रहे हैं
भगवद गीता पढ़ने के लिए? शुभम कितना? आधा घंटा. शुभम एंड शुभम, अनदर शुभम, शुभम मिश्रा एंड शुभम नागर. आप complete? Read again. There is nothing like completing Bhagavad Gita. भगवद गीता का आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही आपको उसकी गहराइयाँ पता लगेंगी, एंड यू विल नेवर बी एबल टू रीच द बॉटम. तो अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? यस, रीड अगेन. यू हैव टू रीड मेनी टाइम्स. कितना समय पढ़ लेते हैं आप एवरेज इन अ डे? 1 to 1.5 अच्छा, दैट्स गुड. आपकी पढ़ाई के साथ साथ इतना पढ़ पाते हैं आप? अभी पढ़ाई तो कम ही चल रहा है. पढ़ाई कम चल रहा है अभी. अच्छा, कम चल रहा है मतलब वो तो आपके ऊपर है पढ़ना तो. सो टेक केयर ऑफ. मेडिकल में बहुत स्ट्रेनियस है, इंजीनियरिंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस है. अमन? साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन अभी इससे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और भगवद गीता पढ़ रहा हूँ तो सबकी. हाँ, दैट्स ओके. प्रभुपाद बुक्स, छोटी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड अदर स्मॉल बुक्स. सो एवरेज कितना टाइम पढ़ पाते हैं? वैसे तो अगर जैसे टाइम मिलता है तो लगभग 45 मिनट पढ़ लेते हैं, और ऐसे अगर किसी मटेरियल स्टडी करना होता है तो 15 to 20. ओके. आप? भी मेरा तो ऑडियो अटेंड करते हैं. ऑडियो सुनने एक बार नहीं होता तो 2 बार उसके रिपीट कर लेते हैं. ऑडियो बुक है आपके पास? हाँ, भगवद गीता ऑडियो. वो सुनते हैं आप? और वीडियो भी देखते हैं. वीडियो भी देख लेते हैं. और आपकी कॉलेज की पढ़ाई करते हैं? नहीं, कॉलेज नहीं जाते. अभी आपका कौन सा कॉलेज में? एनआरए में है क्या हो गया? आपका ट्रांसफ़र हो गया? छोड़ दिया? छोड़ दिया. अभी मैं आरकेडीएफ. सोच रहा हूँ कि थर्ड ईयर में एडमिशन हो जाएगी. टेक सीरियसली योर स्टडीज़ ऑल्सो, है ना? तो अच्युत कृष्ण प्रभु से बात करके आपका फिक्स करो आपको कितना पढ़ाई आपका कॉलेज के लिए कितना है. सो हम लोग चाहते हैं कि जो भी बेस में स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, सो जो भी उनकी स्टडीज़ हैं उसके लिए वो लोग ध्यानपूर्वक जितना ज़रूरी है उतना समय दें, है ना? सो बिकॉज़ 2 भाग हैं जीवन में, एक शरीर के लिए भी है, तो इसलिए डोंट नेग्लेक्ट दैट एस्पेक्ट इमेच्योरली. अगर किसी का परिपक्व अवस्था में इफ ही इज़ फुल्ली अब्जॉर्ब्ड एंड ही इज़ डिसाइडेड एंड देन ओके, प्रीचिंग करना है पूरा पढ़ना, सो वो डिसीजन तो बाद में है. बट राइट नाउ यू आर स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर डोंट नेग्लेक्ट दैट. करेक्ट? करना बहुत हार्ड होता है. क्या? आप अगर आपको मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आप अपने इनिशियल स्टेजेस में थे, आपको ये कन्विंस करना हार्ड हुआ था कि मैं इसमें जाऊँगा. मैं इस भगवत प्रचार की लाइन में ही चला जाऊंगा क्या? ऐसा ये डिसीज़न हार्ड होता है क्या? यस, इट्स नॉट इजी डिसीज़न. पूरा संसार तो पैसा कमाने में बिज़ी है, तो ये डिसीज़न कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे परोपकार करना है. माई लाइफ इज़ meant टू सर्व कृष्णा, एंड बाई सर्विंग कृष्णा सर्विंग अदर्स. तो ये तो सामान्य नहीं है ये डिसीज़न. सो इट्स डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल.
There are devotees, there are students who take such decisions. So that is possible. Not impossible, but it's difficult. वैष्णव प्रभु के बारे में बता रहे थे वो. I was going with this tilak in my college, medical college. It took some time. पहले हम लोग बेसिक भगवद गीता पढ़े, मंदिर में सेवा करते थे. धीरे धीरे हमको स्ट्रेंथ मिली, हम लोग समझे यस दिस इज़ राइट, परफेक्टली करेक्ट. तिलक लगाना, कंठी पहनना, भगवान की सेवा करना, इसमें क्या गलत है? दिस इज़ द राइट थिंग. हम लोग किसी लड़की के साथ नहीं भाग रहे, हम लोग शराब नहीं पी रहे, हम लोग ड्रग्स नहीं पी रहे हैं, हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं. तो जो लोग सोचते हैं ये गलत है, वो गलत है, हम लोग सही हैं. सो व्हाई वी शुड देन हाइड? दे शुड बी अशेम्ड, नॉट वी. सो दैट कन्विक्शन ग्रेजुअली कम्स. वो साक्षात्कार धीरे धीरे आता है, वो स्ट्रेंथ आती है. जैसे जैसे समझ हमारी क्लियर होती है, हम क्लियरली, हम डाउट्स के बियॉन्ड वी कैन सी दैट दिस इज़ परफेक्ट, दिस इज़ राइट, एंड वाई शुड नॉट वी डू इट. सो लाइक दैट ग्रेजुअली द कन्विक्शन कम्स. तो मैं जा रहा था तिलक लगा के, तो बहुत हंसी उड़ाते थे क्लासमेट्स. ट्यूनिंग फॉक पहन लिया. वी हैव ट्यूनिंग फॉक इन आवर, आपके यहाँ भी होगा ना फिजिक्स लेबोरेटरी में ट्यूनिंग फॉक. So it was strange, everybody will look at you, what is this? But then after some time people know that you are like that. That's it. And then they understand that he is something different, he is somebody different. And then they accept it, and then they actually gradually start respecting you. That you are some man of principles. You are bold. You are brave. You can do things which you think is right, irrespective of what normal people think. आप शेर हैं, भेड़िए नहीं है, भेड़ नहीं है. People can understand it. शेर अकेला चलता है ना, चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे किसी की, I will be alone. और भेड़ को हमेशा साथ में बहुत सारे लोग चाहिए. तो ज़्यादातर लोग तो भेड़ होते हैं, लेकिन भगवत भक्त तो शेर हो सकते हैं, शेर होते हैं. So it's a matter of conviction, but it is not that important. More important than that is that first you understand what is right. तिलक लगा के जाएं या शेव हेड करें, ये महत्वपूर्ण है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पहले समझना सही क्या गलत क्या है. सो इतने ज़्यादा उसके बारे में आप वो मत कीजिए. वो ऑटोमेटिकली जब जो आपको लगेगा कि यस होगा तो लेट इट बी सो. सो पहले ये अच्छे से अंदर से पहले पक्के होइए, फिर बाहर से अपने आप हो जाएगा, है ना. पहले अंदर से स्ट्रांग होइए, कन्विंस होइए कि क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, लाइक दैट. फादर मदर, जब हम समझ जाते हैं कि जो चीज़ सही है और ये मेरा जीवन है, और जब ऐसी सिचुएशन आती है कि वी कैनॉट लिव विदाउट दिस, वी कैनॉट लिव, वी कैनॉट गिव अप चैंटिंग, वी कैनॉट गिव अप भक्ति, दिस इज़ अवर लाइफ, दिस, जब हम इस स्तर पर पहुंच जाते हैं दैट, सो देन इट इज़ वी कैनॉट लिव विदाउट दिस. और आप देखिए तो सब लोग अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं, सब तो माता पिता के अनुसार नहीं करते हैं. अनदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग इज़ सो कॉल्ड लव. जब कोई सो कॉल्ड लव फेयर में लव में आता, तब क्या होता है माता पिता का, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अरे माता पिता हाँ जो भी हाँ बोले ना बोले जो भी है, बट आई कैन नॉट लिव. सो अगर ऐसे पागलपन के लिए हम ऐसा कर सकते हैं तो वास्तविक चीज़ के लिए नहीं कर सकते. भगवान हमारे वास्तविक माता पिता हैं. वर्तमान समय के माता पिता तो इस जीवन के माता पिता हैं, लेकिन कृष्ण तो हमारे हमेशा के माता पिता हैं. तो उन माता पिता को छोड़ देंगे हम किसी अन्य, बहुत समय से हम बिछड़े हुए हैं उनसे. तो अब आज जब हमें उनका पता लग रहा है
तो फिर अगर दुर्भाग्य से हमारे वर्तमान समय के माता पिता ही बोले नहीं 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 नहीं, अपने वास्तविक माता पिता को भूल जाओ, तो क्या उनके कहने से हम भूल जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो सब कब, जब धीरे धीरे ऑटोमेटिक हमारा रिलेशनशिप बनता है भगवान के साथ, तब धीरे धीरे सब ये संभव होता है। बहुत मुश्किल है सोचना कि माता पिता, लेकिन ज़्यादातर धीरे धीरे माता पिता समझ जाते हैं, धीरे धीरे, एकदम से नहीं। बहुत बहुत संघर्ष होता है। लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ मंदिर में मेरे माता पिता दीक्षित भक्त हैं, दे आर फुल टाइम दीक्षा, मतलब उन्होंने अभी रिटायरमेंट हो गया एंड दे आर फुल्ली इनटू द मूवमेंट। अच्युत कृष्ण प्रभु के फादर मदर, दे आर, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया एंड दे आर फुल्ली इनटू इट। जगन्नाथ प्रभु के फादर मदर, श्याम सुंदर प्रभु के माता पिता नहीं। फ़ोन पे बात होती है बट ही इज़ नॉट रेडी, नो नो नो, आप यू आर मैड यू एंड सो ऐसा भी है सम केसेस, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस माता पिता धीरे धीरे समझ जाते हैं। सो इट्स ए स्ट्रगल, बट एनीवे इट्स नॉट दैट वी आर सेइंग कि हम माता पिता को ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि आप ऐसा करो, उनकी इच्छा है। और लेकिन वो हमें भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि आपको भक्ति नहीं करनी है, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, ठीक है। और अगर हम गृहस्थ हैं तो हमारा कर्तव्य है माता पिता की हम सेवा करेंगे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। लेकिन अगर वो कहें देखो तुम्हें भक्ति नहीं करनी है, सो दैट वी कैन नॉट डू। हम भक्ति करेंगे और आपकी देखभाल करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है ना, आपकी देखभाल करना, दैट विल डू, करेक्ट। सो अगर कोई गृहस्थ है तो उसका वो कर्तव्य है, तो दैट ही विल डू। और अगर कोई ब्रह्मचारी है, आजीवन ब्रह्मचारी, तो फिर उसका प्राथमिक कर्तव्य प्रचार करना हो जाता है। फिर उसके माता पिता की देखभाल का कार्य भगवान ले लेते हैं। जो ब्रह्मचारी होता है उसके माता पिता जो रिलेटिव एक्सपायर होते हैं तो क्या वो रोते नहीं? क्या वो रोते नहीं? ब्रह्मचारी क्या भक्त भी नहीं रोते हैं, गृहस्थ भक्त भी नहीं रोते हैं। क्योंकि रोना हम कब रोते हैं? जब हम लोग इल्यूजन में होते हैं कि ओ ये शरीर ही मेरे माता पिता थे, करेक्ट, अभी ये शरीर मर गया, करेक्ट, अभी वो जो व्यक्ति था वो तो चले गए, तब हमें रियलाइज़ होता है कि अरे एक्चुअली वो कोई व्यक्ति था, तो इसलिए हमको दुख होता है। तो कोई माता पिता एक्सपायर होते हैं या कोई रिलेटिव एक्सपायर होते हैं तो एक वास्तव में जो गंभीर भक्त है, जो जिसको कुछ रियलाइजेशंस हैं भगवान के साथ, संबंध जिसका कुछ हद तक है, तो वो देखता है कि वास्तव में मेरे माता पिता या मेरे रिलेटिव अगर वो भक्त थे तो वो और आगे अपनी भक्ति कंटिन्यू करेंगे, और अगर पूर्णता प्राप्त किए तो भगवत धाम भगवान की सेवा में रहेंगे। तो दुख का विषय क्या है? हाँ, ये दुख का विषय है कि मुझे उनका संग नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार से दुख है। लेकिन साथ साथ सुख भी है कि उन्होंने अपनी यात्रा वापस, दे आर नाउ गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड। अगर वो भक्त नहीं है, माता पिता या रिलेटिव, तो जब जीवित हैं तब भी हमें दुख होगा कि क्यों वो भक्त नहीं है, क्योंकि वास्तव में वो दुखी हैं भगवान के भक्ति नहीं करके, भगवान के साथ अपना संबंध नहीं समझ करके। चाहे कोई इस जीवन में है वो भी दुखी है, और हमें उनको देख करके दुख होता है कि क्यों वो भक्त नहीं है। और अगर वो शरीर त्याग देंगे तो फिर हम ज्ञान से समझते हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर को उनको प्राप्त होगा अपने कर्म के अनुसार। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको कुछ आपकी तरफ आप ले जाएं, उनको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हो, उनको कुछ सत्संग प्राप्त हो, उनको कुछ साधु संग प्राप्त हो। और अंततः भक्त जानता है कि ये तो आत्मा तो कभी नहीं मर रहा है, शरीर है और वो तो मरना ही है एक दिन उसको। तो वो धीरे धीरे समझता है कि एनीवे ये जो हमारे संबंध है तो क्षणिक है। जैसे जब पानी बहता है, जैसे आप देखेंगे अभी नदी में पानी खूब बहेगा तो कई बार साइड के पेड़ या सब टूट के गिर जाते हैं, तो वो कभी समीप आते हैं, नज़दीक आते हैं, कुछ समय साथ चलते हैं और फिर धारा में अलग हो जाते हैं, फिर कोई दूसरे टुकड़े साथ में आते हैं। तो हमें ये समझ में आना चाहिए, हम समझते हैं कि ऐसे ही है जीवन।
रेस्टोरेंट की तरह से, होटल की तरह से। होटल में आप कई लोग पड़ोसी पड़ोसी बन जाते हैं, या ट्रेन में आप सफ़र करते हैं तो आपके आमने सामने बैठते हैं, कुछ मित्रता होती है, कहाँ से हो या आप, अच्छा आप क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अच्छा। फिर स्टेशन आता है, ओके स्टेशन आ गया, टाटा बाय बाय। सो ऐसा है। तो ये सब बड़ा लगता है अरे ऐसा है ये, लेकिन ये है, ये दिस इज़ द रियलिटी, इज इट नॉट? तो बड़ी कठिन लगती है। लेकिन जब हम जानते हैं कि यस, इस अनित्यता के परे एक नित्य जीवन है, हमारे माता पिता, हम सभी भगवान के साथ नित्य रूप से संबंधित हैं, तो फिर दुख की बात क्या है? वी हैव टू गो टूवर्ड्स दैट रियल सिचुएशन, वी हैव टू टेक अवर फादर मदर्स ऑल्सो टूवर्ड्स दैट सिचुएशन, वी हैव टू ट्राई टू टेक अवर रिलेटिव्स ऑल्सो टू दैट सिचुएशन। वो रियलिटी है। और अगर हम अपने माता पिता रिलेटिव्स को वही सपना दिखाते रहें, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा, चिंता मत करो, हैं, वो झूठा सपना दिखाना है, क्योंकि हम साथ में नहीं रहेंगे। वो ड्रीम है, उस ड्रीम से निकलना अच्छा है, निकालना अच्छा है। खुद भी जगो, दूसरों को भी जगाओ। माई डियर फादर मदर, आई एम नॉट गोइंग टू बी विद यू फॉर एवर, यू आर नॉट गोइंग टू विद मी फॉर एवर, बट मी एंड यू, हम लोग भगवान के नित्य दास हैं। लेट्स गो टू कृष्णा, देन वी विल बी टुगेदर फॉर एवर विद कृष्ण। वासु वसुदैव कुटुंबकम। सो ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें समझना है। तो शुरू में थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा, क्योंकि रियलाइजेशन नहीं है, थ्योरी हम सुन रहे हैं, कैसे होगा, क्योंकि आसक्ति है, अज्ञानता है, अज्ञानता में डर लगता है। जब अंधेरा होता है तो डर लगता है ना, भूत का, प्रेत का, सांप का। जैसे दिन निकलता है तो डर खत्म हो जाता है ना। उसी प्रकार से जब कृष्ण चेतना का प्रकाश आता है तो शोक, डर खत्म हो जाता है ना, सब चीज़ क्लियर दिखने लगती है। यस, दिस इज रियलिटी। जब दिखने लगती है तो शोक, डर सब खत्म हो जाता है। सो इट्स लाइक दैट। प्रभु जी, if someone is engaged in any of the bad activities, not he is an addict, but at some point, at some extent, and he also read books like मतलब ग्रंथ भगवद गीता एंड भागवतम, बिकॉज वो भगवान को तो मानते हैं लेकिन वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे, तो उन्हें इनका पढ़ने का कोई फायदा मिलेगा? यस, यही पढ़ने से ही तो उससे बाहर आ पाएंगे। वो जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं। अगर देखिए आप, ये है कि देखो भाई भगवद गीता पढ़ने से पाप खत्म हो जाते हैं, नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से, तो चलो ऐसा करते हैं, खूब पाप करेंगे और फिर नाम ले लेंगे, तो वो शुद्ध नहीं होगा। लेकिन अभी हम आदत से मजबूर हैं, बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों जन्मों से पाप करते आए हैं, तो इसलिए ना चाहते हुए भी हम विवश हो जाते हैं, पाप में विचारों मन में आते हैं और एडिक्शन हो गया है। तो वो पाप की वृत्तियाँ भी हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड हमको फोर्स करती हैं। तो लेकिन हम उसमें फिर रिपेंट करते हैं कि आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, वी रियली रिपेंट। अगर हम सिंसियर होंगे तो रिपेंटेशन होगा ना, ग्लानि अनुभव होगी कि ये क्या हो रहा है। और तो उनके लिए भगवान बताते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो विवशता की वजह से पाप में लिप्त हो रहा है, जिसका सिम्टम होगा कि विल बी रिपेंटिंग एंड विल बी ट्राइंग हिज बेस्ट टू कम आउट ऑफ इट, तो ऐसे भक्त को मेरी भक्ति कंटिन्यू करते रहना चाहिए पूरे उत्साह से, उसे निराश नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे वो उससे बाहर आ जाएगा मेरी कृपा से, भगवान कहते हैं। तो इसलिए निराश नहीं होना है, क्योंकि ऑब्वियस है हम ओवरनाइट तो सभी अपनी गंदगी से बाहर नहीं आएंगे, लेकिन ये ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट को क्यों छोड़ना है। लेकिन ट्रीटमेंट का दुरुपयोग नहीं करना है कि ठीक है पाप में उससे हम लोग, उससे फल खत्म हो जाएंगे तो चलो पाप करते हैं। वो बिजनेस कैसे करोगे, तो भगवान तो व्यक्ति हैं, देख रहे हैं, अच्छा मेरे को धोखा बनाने की कोशिश करते हो, ओके, हाँ, मुंह में राम बगल में छुरी, लाइक दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे हमें नॉर्मल चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए, जैसे नॉर्मल मतलब जैसे मेरी फैमिली कहीं घूमने गई, मान लो सपोज दे वेंट टू सी ताजमहल, देन आई शुड नॉट गो इफ आई एम नो। जब हम परिवार में रहते हैं, जब हम परिवार के जन हैं, तो कुछ चीज़ें सामाजिक ऑब्लिगेशंस, सोशल ऑब्लिगेशंस बन जाते हैं। तो हम उसमें कई बार जाना पड़ सकता है।
लेकिन उसमें फिर हमें श्रद्धा नहीं है, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वी आर जस्ट गोइंग बिकॉज फादर मदर इज सेइंग, तो इंटरेस्ट नहीं है तो फिर ठीक है, वो इतना प्रभावित नहीं करेगा। अगर आप इंटरेस्ट से जा रहे हैं, या आई एम गोइंग टू सी नाउ द ताजमहल एंड दिस एंड दैट एंड मूवी एंड दिस, तो देन इट विल अफेक्ट यू मोर। बट इफ यू आर जस्ट गोइंग बिकॉज यू हैव टू बी देयर बिकॉज ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन, तो फिर इतना इफेक्ट नहीं करेगा। इफेक्ट कुछ करेगा लेकिन इतना नहीं। मान लीजिए अभी परिवारजन, सम टाइम इट हैपन्स इन सम फैमिलीज, ओके लेट्स गो एंड ड्रिंक, ऐसा भी होता है, पिताजी और लड़का भी साथ साथ में ड्रिंक करते हैं, करेक्ट। सो अभी नाउ इट्स सोशल ऑब्लिगेशन कहेंगे, नो, ये आसुरी है। सोशल ऑब्लिगेशन मतलब वो शास्त्र के अंतर्गत तो होना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो डिविजन्स हैं। एक है, ठीक है, सोशल ऑब्लिगेशन है, माता पिता है, कोई विवाह है किसी का घर के अंदर, तो वो एक वैदिक संस्कार के अंतर्गत की क्रिया है, और दूसरी है पाप क्रिया है। तो जो वैदिक संस्कारों के अंतर्गत क्रिया है उसमें हम लोग भाग ले सकते हैं, लेकिन जो पाप क्रिया है उसमें तो नहीं लेना चाहिए। जो वैदिक संस्कार हैं उसमें अगर हम गृहस्थ हैं या वर्तमान समय में, तो अभी आप लोग का कोई डिसीजन नहीं है क्या है, सो यस, इफ इट इज़ नेसेसरी यू कैन पार्टिसिपेट। लेकिन अगर आपको वहाँ जाने से, क्योंकि आजकल जो विवाह या क्या जो भी कुछ होता है उसमें जो मूड है, मूड इज़ सिंपली पाप में वृत्तियाँ भी होती हैं ज़्यादातर, और जस्ट एन्जॉय एन्जॉय एन्जॉय। सो ट्राई टू एसोसिएट एज मच एज नेसेसरी, जितना आपकी चेतना को वो डल नहीं करे, लाइक दैट। बट इट्स नॉट ऑलवेज। तो ऐसा नहीं अभी हम घर जाएंगे तो हम कहेंगे नहीं अभी हम ऐसा नहीं, बिकॉज सो यू हैव टू बी लिटिल सेंसिटिव ऑल्सो, क्योंकि वो अभी समझे नहीं है माता पिता, तो इस बात को तुरंत एकदम से रिवोल्ट नहीं कि नहीं 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 अभी ऐसा नहीं हम अभी ये नहीं। सो थोड़ा टैक्टफुली भी रहना पड़ेगा, उनको थोड़ा समझाने का प्रयास करना है, लेकिन देखना भी है कि वो समझने को तुरंत तैयार हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर छोड़ भी देना है, अपना करो, उनको बाद में समझाएंगे, ऐसा भी है। सो उसके लिए आपको डिवोटीज़ के साथ में प्रैक्टिकली रह करके कैसे डील करना है वो देखना पड़ेगा थोड़ा। मतलब तेरी वगैरह होती है, तेरी, हाँ, तो उसमें जैसे मतलब खाना नहीं खाते, वो क्यों मतलब ऐसा तो नहीं है कि तेरी में बस लोग खाना नहीं खाते, मतलब देखे मैंने कि खाना नहीं खाते। हम तो तेरी हो कि शादी हो, हम तो कहीं भी बाहर का खाना नहीं खाते, वो तेरी की बात नहीं है। वी डोंट ईट एनीवेयर आउटसाइड, वी ईट व्हाट इज़ ऑफर्ड टू गॉड, व्हाट इज़ ऑफर्ड टू कृष्णा। तो अगर तेरी में भगवान का प्रसाद भोग लायक है, देन दे कैन टेक। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।